Hi, how are you? I hope we are fine. So previous classes I have discussed about exercise 3.2. So if you have not watched this video, please go and watch. So we'll get the idea about exercise 3.2. And also I had solved all those problems along with the concept. Okay. So if I would get any concept related to those problems, I try to deliver all those concepts at the same time while I am trying to solve question. Okay. So I request you go to this video, and so we'll get the confidence about exercise 3.2. And today I would start exercise 3.3. Okay. So this is the matrix chapter, exercise 3.3 from NCERT books. So this is the NCERT books. So if you have NCERT books, please take it along with you. So if you are not able to see from the blackboard, so you can at least see from your books. Okay. That's what I'm saying. You have to open your books. So just wait. Exercise 3.3. So today I'm going to solve exercise 3.3 from NCERT book. So okay. So first I have to write NCERT. Okay. Exercise 3.3. So I will take first question. This chapter is related to transpose of the matrix. Okay. So already I give you the brief idea about transpose. What is a transpose? What will be the properties of transpose? So already I had discussed all those things related to transpose. If you have not watched, then you should go to the beginning of the matrix videos. So we'll get all those things within the short period of time. So okay. So okay guys. So first of all, I'm going to take question number 1. So question number 1 is find the transpose of each of the following. So only I would take transpose. What I told you about the transpose. Transpose simply you have to change row to column to row. Only this is the meaning of the transpose. तो यही ट्रांसपोज का मतलब है कि आप रो को कॉलम करो, कॉलम को रो करो. यही एक मतलब हो जाती है. ठीक है. तो चलिए फिर. तो मैं पहला क्वेश्चन जो मैं अपने को ले लेता हूँ. तो पहला क्वेश्चन जो है क्या एक सिंपल है क्वेश्चन दिया हुआ है. इसमें मैं क्या करना है, बस रो कॉलम को आप चेंज करो. फिर भी मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ. फर्स्ट का 3 लेता हूँ. चलिए 1 5 6 √3 5 6 2 3 -1. ओके. तो ये 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको. उसको हमको ट्रांसपोज निकालना है. तो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द ट्रांसपोज, जस्ट यू हैव टू चेंज रो टू कॉलम टू रो. So in this way you are going to get transpose of a matrix. Okay. So transpose matrix 1. This just you have to change this row into columns. 1 5 6 √3 5 6 2 3 -1. This is the answer of your question. This is the transfer of this matrix. Okay. ये होगी आपकी. तो कुछ ट्रांसफर में कुछ करने नहीं है. तो ये पहली क्वेश्चन हो गई. ये भी जो दिया हुआ है इसमें और भी क्वेश्चन, तो सिंपली आप रो टू कॉलम टू रो करो, बस सिंपल आ जाएगी. ठीक है. तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ आप लोगों के लिए. जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको मैं लेता हूँ. जस्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2. तो हाउ कैन आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 हाउ कैन आई सॉल्व? सो ए इज गिवन बी वेरीफाई. सिंपली देखो वेरीफाई क्या करनी है अपने को. जस्ट मैं एक क्वेश्चन लूँगा. सेम फंडा से अपने को अपना अगला क्वेश्चन जो दूसरा पार्ट है वो भी सेम तरीके से सॉल्व करना है. तो ये क्वेश्चन में ए दिया हुआ है. क्या ए आपका दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1. ओके. ये ए दिया हुआ है आपकी. ठीक है. और बी जो दिया हुआ है आपको -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. ओके. ये आपकी दी हुई है. ठीक है. और हमको निकालना क्या है, a + b इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज b ट्रांसपोज. ये हमको वेरीफाई करनी है. ठीक है. यू हैव टू वेरीफाई दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस इक्वेशन you have to verify this equation equal to this equation. So from already it has been given a value or also b value. So simply this is the sign of transpose, this is the sign of transpose, this is the sign of transpose. So just you have to verify from this a and b which are given in question. Okay. तो सबसे पहले हम a + b निकालता हूँ. ठीक है. a + b
ए प्लस बी। तो मैं डायरेक्टली इसमें मैं लिखता हूँ डायरेक्टली ए प्लस बी, मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली यहाँ से एडिंग करूँगा। तो ये 3:3 ऑर्डर का है, ये भी 3:3 ऑर्डर का है। तो एडिंग कब होगा, जब ऑर्डर सेम हो तभी एडिंग होगा। तो इसमें ऑर्डर देखो आप लोग सेम, ऑलरेडी ऑर्डर इज सेम, सो यू कैन ऐड दिस नंबर, यू कैन ऐड दिस मैट्रिक्स। दिस इज द कंडीशन ऑफ adding of any two matrix, okay? Or what is the condition? Order must be same, only you are able to add two matrix, otherwise you are not able to add two matrix if order is not same, okay? चलिए फिर ये दिया हुआ है जो -1 -4 what will be the -5 3 -2, okay? 5 6 9 this is 9, okay? Sorry, this is the 9. The 9 9 9 9, okay? Okay, -2 + 1 -1 3 + 1 4 1 + 2, okay? ये भी 3:3 ऑर्डर का जाएगा आपको, ठीक है? तो अब हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालना है हमको, तो a + b ट्रांसपोज क्या होगा बताओ? a + b ट्रांसपोज, इसको जस्ट रो को कॉलम करो, सिंपली ये क्या आ जाएगी -5 3 -2 6 9, आपका 9 आ जाएगा, -1 4 2, ओके? ये आपकी 3:3 ऑर्डर की ये भी हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई अपने को, ये a + b आ गई। चलिए फिर मैं इसका a + b करता हूँ, ठीक है? तो मैं थोड़ा बहुत इसको इरेज कर देता हूँ, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत मैं इसको जो a + b मुझे करना है, इसलिए मैं ये मैं रहने देता हूँ, ये जो a + b आई है हमको, ये मैं रहने देता हूँ आप लोगों को एज इट इज। जस्ट आई एम इरेजिंग ओनली दिस पार्ट फॉर getting some space, okay, to solve a + b, okay? तो ये सबसे पहले मैं ये कर लेता हूँ a + b, इसका मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ। सबसे पहले a' का ट्रांसपोज क्या होगी, यहाँ पे मैं a' का ट्रांसपोज लिखता हूँ। तो a' का ट्रांसपोज लिखना है मुझे, तो सबसे पहले इसको मैं कैसे कर लूँ? चलिए a' का ट्रांसपोज -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ओके? फिर b ट्रांसपोज करना है, तो चलिए b का ट्रांसपोज कर लेता हूँ, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ओके? तो चलिए फिर मैं इसको यहाँ पे एटलीस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है? a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज यहाँ पे डायरेक्टली मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे ऐड करूँगा डायरेक्टली, यहाँ पे a ट्रांसपोज मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, b ट्रांसपोज भी ये निकाल चुका हूँ। चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से एडिंग करता हूँ, -1 -4 -5, ओके? 5 6 -1 3 9 4 4, ठीक है? ये फिर -3 -5 -2, ओके? 9 और 2। चलिए ये आ गई हमको ये। तो आप देखो ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो आप करके देखो, ये दोनों मैच, इज दिस मैच और नॉट? यू हैव टू चेक फ्रॉम दिस वन, दिस मस्ट बी सेम फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू बी, दिस हैज टू बी सेम, ओके? तो -5 -6 -1 3 9 4 -2 9 2, तो ये दोनों इक्वेशन हमको सेम दिख रहा है, ठीक है? ये दोनों इक्वेशन हमको सेम दिख रहा है कि नहीं बताओ? This equation is same, so what you can say, yeah this is the same, so you in this way you can verify from this calculation, okay? So कैसे लास्ट में लोग आ गए, कैलकुलेशन आ गई कि नहीं बताओ? ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई, तो ऑलरेडी यू आर गेटिंग और नॉट? यस यू आर गेटिंग, ओके? तो इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है, you must have to do in same way, only what it has given, question has given, okay, question has given, I am talking about a part 2, okay? I am talking about the part 2, okay guys? I am talking about part 2. So simply part 2, a minus b transpose, a transpose minus b transpose. Simply what I told you in previous videos, if you have to subtract, simply you can do in this way, a + b minus b. So it will be the easier calculation. Also you are not going to do any silly mistakes if you multiply negative sign before, so you can add this one in this way, okay? So simply you have to do only adding, nothing you have to not subtract from one matrix from other matrix, okay? So simply you have to add, so you in order to reduce some silly mistakes, that's why you have to do before
before doing adding, you must have to multiply negative sign each and every element of a matrix. Okay, so ये आपकी ये हो गई आपकी, ठीक है, तो ये हो गई। चलिए फिर ये मल्टीप्लाई कर दिया हम पहले, तो फिर सेम इट इज सेम आ गई कि नहीं बताओ, सेम जो मैं पहले आपको जो बताया, जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बताया एज इट इज सेम बन गई कि नहीं। बस हमको इसमें नेगेटिव पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नेगेटिव साइन से हर एलिमेंट में, तो ये हमको सेम आ गई, ये बस एडिंग करनी है, सेम हमको आ गई, तो बस इसी तरीके से हम लोग करेंगे तो प्रूफ आपकी हो जाएगी। यू शुड नॉट बी वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू डू सिंपल कैलकुलेशन, एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। ओके, सो नथिंग मोर देन दैट। Okay, this is the already I told you in the beginning. Say whatever is question is provided in exercise 3.1, 3.2, 3.3. Only they are testing your basic of your matrix. Okay, have either you are getting concept of matrix or not. Simply they are trying to test your basic of matrix simply. Okay, so already I told you matrix, mathematics, what is the main thing in mathematics, if you are solving some easy problem, it doesn't make it is not beneficial for you. Yeah, this is the beneficial for you for your harder question. If you are going to get any tough question, so this if you have the practicing of solving in some easy question, then automatically you are going to get some concept while you are solving a tough question. So this is the main thing to solve some easy question. Okay, so this is the main thing. So also you have to solve some easy question for in order to get the concept of tougher question. Okay, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर मैं 2 ऑलरेडी कर चुका हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज है, कुछ नहीं करना अपने को। क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज है, कुछ नहीं करना है, नथिंग यू हैव टू डू, ओनली यू हैव टू डू इन द सेम थिंग यू हैव टू डू व्हाट आई हैड डन इन प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, तो ये सिंपल है, तो फिर आपको ये जो क्वेश्चन आपकी आ जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये आपकी वेरीफाई करना है आपके को। सिंपल है, कैसे वेरीफाई करना है, a प्लस बी, ये a प्लस, देखो सबसे पहले देखो ये A1 दिया हुआ, ये है 3:2। देखो सबसे पहले देखो ये क्या है, सबसे पहले ये है, ये हमको एक तरह से ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 क्वेश्चन है, जो देखो इसमें सेम चीज है। जो हम लोग को करना है, क्या करना है, करना ये है a प्लस बी, तो यहाँ पे हमको a ट्रांसपोज दिया हुआ है, सिंपल। पहले देखो इसमें पहले ही ट्रांसपोज दे दिया गया है, ये थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज हो रहा था यार ये तो ऑर्डर सेम है, ऑर्डर डिफरेंट है, तो क्या ये होगा कि नहीं होगा, मतलब एडिंग का कंडीशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ये सिंपली मैं ये चेक कर रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पहले ही a ट्रांसपोज का वैल्यू दे दिया गया है, ये a ट्रांसपोज दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 4 -1 2 0 1 ये दिया हुआ है, b दिया हुआ है आपको क्या, -1 2 1 फिर 1 2 3, ये b दिया हुआ है। तो इसका हमको a ट्रांसपोज निकालना है, a ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले अगर a ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, if you are this is a transpose, if you are again doing transpose, what will be the value, same, this will be the same, you are going to get same a matrix simply. If you are doing a matrix of a transpose, again you are going again transpose of matrix a transpose, so simply you are going to get a matrix of simply a। तो सिंपली अगर इसमें हम a एक और ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स a हमको मिल जाएगी नहीं, तो फिर 3 ये 3 4 -1 2 0 1 ये आ गई, ये भी ये और ये a आ गई, ये भी आ गई। देखो आप सेम चीज़ जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया था, सेम चीज़ है कि नहीं, देखो आप सेम चीज़ है कि नहीं, करना कुछ नहीं करना, वही सेम चीज़ जो मैंने किया था। बस आपको ये कन्फ्यूजन था पहले कि ये मैट्रिक्स पहले ही दे चुका था, ये आपको ये दे चुका था, जो थोड़ा बहुत मैं खुद ही कन्फ्यूज हो चुका था कि और ये दिस इज ऑर्डर नॉट डिफरेंट, हाउ कैन यू ऐड ऑफ 2 मैट्रिक्स। So that's why I was getting some confusion by before I was not able to see this transpose. Okay, a transpose.
तो फिर आगे देखो सिंपली है, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही करना है। फिर ए प्लस बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो हो गई फिर। तो फिर ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3B 1 पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों सेम होगी, सेम है, नथिंग यू ओनली सेम थिंग यू हैव टू डू व्हाट आई डन इन प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो चलिए फिर मैं जस्ट टाइम टेक गोइंग टू टेक अदर क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो सेम, सो क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो सेम, क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो सेम, सो क्वेश्चन 4, ओके। क्वेश्चन व्हाट इज द क्वेश्चन 4? तो क्वेश्चन 4 जो दिया हुआ आपको सेम है, बस देखो कुछ नहीं करना, a प्लस 2b को ये निकालना है, ये हमको निकालना है, देन फाइंड निकालना है। तो क्या इसमें कुछ करना है एक्स्ट्रा? क्या कुछ नहीं करना है, बस यही आपको जस्ट दे आर टेस्टिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 अगर मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स में तो क्या होगा, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही है a प्लस 2b, यही है, सिंपली है ट्रांसपोज a प्लस 2b, सिंपली ट्रांसपोज है इसका। तो क्या होगा, बस वो कुछ नहीं करना, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स b में, देन आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड a plus 2b, और and then after that you have to do transpose of this a plus 2b matrix, okay. This is the only thing. So this is the basic concept of, this is the basic concept, you know, they are testing about the transpose of a matrix. So at least you are getting, are you getting our concept of transpose of matrix or not, properties or not? This question is mainly this exercise mainly focus on properties of transpose as well as some basic concept of transpose, okay. चलिए फिर अगले क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 4 भी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए फॉर द मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए पी। देखो आप क्वेश्चन नंबर मल्टीप्लिकेशन की भी आ गई इसमें, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन अच्छे से अगले पिछले चैप्टर में किया था। ये एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हर एक दूसरे से आपको ये एक लिंक मिलेगा, ठीक है। ये जो है हर एक दूसरे से लिंक है आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपकी है वो मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या है, आप एक मैं ये इसमें 2 पार्ट दिया हुआ है, लेकिन मैं एक ही पार्ट लूँगा क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेम ही है, एक ही पार्ट। तो पहला मैं जो लेता हूँ a इक्वल टू 1 - 4 3, ठीक है, b इक्वल टू -1 2 1, ओके। तो ये a भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब चलिए हमको क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको वेरीफाई, you have to verify what you have to verify. This is the equation is given in the question. So this is the also properties. Already I told you about the properties of transpose of matrix in the previous video. So if you have not watched, so please go and watch all those lectures, so we'll get the confidence about the matrix, okay. So this is the sufficient what I'm trying to deliver the concept as well as some numerical. This is the more than sufficient for any board examination, okay. So you must have to be confident about this content, whatever content I am providing in front of you. This is the more than sufficient for you solving any numericals, okay. But just you have to think, just you need to learn some basic concept of each and every subject. At the end you have to practice as you can, and the examination will be, you will be the 100% full prepared for your examination, okay. So only you have to do these things, you are going to prepare, you are going to get good number in your board examination, okay. चलिए फिर ये देखिए, सिंपल ये प्रॉपर्टी है कि नहीं, बताओ आपकी ये प्रॉपर्टीज है कि नहीं, सिंपल है, ये प्रॉपर्टीज है। तो सिंपली हमको, लेकिन फिर भी हमको प्रूफ करना है, जस्ट यू हैव टू वेरीफाई दिस वन। चलिए फिर ए बी मैं निकालता हूँ उसका वाले। ए बी क्या होगी, देखो ये 3:1 है, ये 1:3 है, ठीक है। तो मैं क्या बताया था, ये पहला ये दूसरा सेम होना चाहिए, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए फिर मैं ले लेता हूँ 1, तो क्या होगी, ये जो होगी 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये -1, ये 2 1, फिर माइनस ये, फिर -4, ये -4 -4 -8 -4 -3 -6 3, ये 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। ये आपको 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ये 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा।
तो चलिए फिर इसका हमको ट्रांसपोज, इसका ये ए बी, इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा आपके, ए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, -1 2 1 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 3, ओके। ये 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंपली ये 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा, ये 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये भी ये आ गया। चलिए हमको फिर हमको क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है। तो सिंपली हमको मैं ये भी लिखता हूँ जो हमको एट द एंड रिजल्ट आई है। चलिए मैं इसको फिर मैं अलग से मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज कर लेता हूँ। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, इसको रो कॉलम है तो उसको रो में लिख दो 1 -4 3, बी ट्रांसपोज लिख दो -1 2 1, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। तो अब चलिए फिर इसी को मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कर लेता हूँ। सिंपली मैं ऐसे ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करूँगा तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करूँगा तो क्या होगा, ये -1 2 1, ओके, ये 1 -4 3, ठीक है। तो चलिए इसका ये भी 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ -1 -1 -4 -3, ओके, 2 -8 6 1 -4 3, ओके। ये इसका हमको इसका ये देखो, आप देखो सिंपली हमको क्या ये आ गई, हाँ ये आ गई बस। तो ये देखो ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश ट्रांसपोज, तो दोनों हमको ये मैच करना है, दोनों ये हमको वेरीफाई करना है। तो चलो दोनों को मिलाओ, देखो -1 -1 4 -3 2 -8 6, ओके 1 ओके, दोनों मैच कर रहा है। दिस इज द सेम थिंग्स, दिस मैट्रिक्स आर सेम। So what you can say? So this is you have proved that A B transpose is equal to B transpose A transpose. This is the properties of a matrix. Okay. Already already I told you in the beginning of the property of matrix. This is the property of matrix. Also you are going to prove mathematically by take some example to get some this result. Okay. This is the already I told you about this is the transpose of this is the property of transpose of matrix. Okay. So just you have proof by also taking some example, means some example A transpose A matrix B matrix, just they are trying to prove mathematically, okay. So same things, but already you know about this is the matrix, this is the property of matrix, okay. So chaliye question number already what you have done, you have done question number 5. So I'm not solving question number part 2. Question number 5 का part 2 I'm not solving this one because this is the same things you have to do what I have done in question number 1, question number part 1. The same thing you have to do part 2 also, okay. That's why I'm not solving, just you have to do by your own self, by yourself, okay. Just you have to do by your own. So okay, I'm taking question number 7, okay, sorry, I'm trying to take question number 6. तो question number 6 लेने से पहले चलिए थोड़ा बहुत just I have to erase this one for getting some space, okay. I have to erase this one for getting some space. I have to erase this is the question number 6, okay. So this is the question number 6. So this is the question number 6. Question number 6 is what is given in question number 6, cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, okay. This is the A and this is the A transpose. What is A transpose? A transpose is what is the A transpose? Cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, okay. This is the order 2:2 order, this is also 2:2 order. तो अब A ट्रांसपोज हमको निकाल लेना है, बट देन वेरीफाई A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब हमको ये वेरीफाई करना है A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I। सिंपली हमको ये हमको प्रूफ करना है।
ये हमको दिया हुआ क्वेश्चन के वेरीफाई करना है सिंपली, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, यू हैव टू वेरीफाई दिस इक्वेशन, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, ओके। दिस इज द मेन थिंग्स यू हैव टू verify has given in question, okay, this is already given in question, okay। तो चलिए फिर चलिए क्या रखा है फिर ए इंटू ए इक्वल ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू, चलिए फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले तुमको। तो चलिए तो कॉस, मैं एक जगह लिख देता हूँ कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर इससे कॉस अल्फा, ठीक है। ऑलरेडी ऑल्सो यू आर डूइंग दिस वन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। ये हमको ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस अल्फा, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ओके। तो ये हमको आ गया, ठीक है। ये हमको बस हमको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है दोनों को। ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू क्या आ जाएगी, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर, ओके, ठीक है। कॉस, फिर ये कॉस ओके, ये कॉस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ओके, प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ओके। दिस इज द मेन थिंग्स। फिर आप चलिए यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये सिंपली कुछ नहीं करो, जस्ट आई एम ट्राइंग टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, ओके। नथिंग आई एम डूइंग, ओके। माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ओके। तो चलिए फिर देखो, ये प्लस माइनस खल्लास, ये भी माइनस खल्लास, ये जीरो आ गई, ये भी जीरो आ गई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू 1, ये भी 1, तो क्या आ गई हमको बताओ। सिंपली मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 0 0 1 मीन्स हमको एडिटिव मैट्रिक्स प्रूफ हो गया यहाँ पे, मतलब ये वाली मैट्रिक्स हमको ऑलरेडी वी आर गेटिंग बाय प्रूफ, दिस इज द प्रूफ, ओके। दिस इज द प्रूफ। सो बाय डूइंग सम कैलकुलेशन you are getting the result, okay। So this is the also properties of a matrix. Just already I told you all those things in the beginning, okay, in the beginning classes about all those things. But you are doing this time, just you are taking some example and trying to prove this is this valid or not, by solving by taking some example, just you are trying to prove is this valid or not. Actually this is the property, okay. Already I told you in the beginning of classes, yeah, this might be the transpose of a transpose. This is already given in properties of a transpose. So already I told you about this is the properties of a matrix, okay। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 6 के लिए कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन सब में मैं आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये सिंपली आपने जो भी टफ क्वेश्चन करोगे उसमें बहुत सारा ये आपकी ना क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, जो जब भी कुछ लेंदी क्वेश्चन आएगी तो उसमें आपके ना हाथ बहुत जल्दी चलेंगे, इसलिए मैं ये सब मैं करवा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ आप लोगों कि मैं एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी को टच करूँगा, आइदर वो इजी हो या कुछ भी हो, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। एक बहुत ही अच्छी बुक है और इस तरह से इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोल्व फर्स्ट एनसीईआरटी बुक, then you are, if you are getting time, then you have to solve other books also at the same time, okay। So this is so it depends upon you, okay। So but you have to solve first NCERT completely, then after that if you are getting time, if time is permitted, then you have to go for another books, okay। But this is the compulsory to solve NCERT book first, okay? So this is the question number 6, okay guys। So I'm not going to solve question number 6 of part 2. So this is the same thing, same funda, same calculation you have to do, and at the end we are going to get result by doing some calculation, nothing. So I'm not going to touch question part 2. Just you have to do by yourself, and already I solved question number 6 part 1. That's why I'm not touching this part 2. Okay. So just you have to do by yourself. चलिए मैं ये क्वेश्चन नंबर आपकी 7 ले रहा हूँ।
जो आपको मैं 7 ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 7 ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या करना है आपको, सो दैट मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओह, इसमें भी सिंपली यू हैव टू प्रूव दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एनी अदर मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक क्वेश्चन नंबर आपकी 7 जो दिया हुआ है, 1 जो 7 का पार्ट जो है 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ओके 5 1 3। ये आगे ये हमको ये बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जस्ट यू हैव टू रिकॉल in the from previous classes, from beginning classes. Already each and everything I told you about in brief. Already I had discussed all those things, properties of skew symmetrics, symmetric and anti-symmetrics. Already I discussed about all those metrics, okay. So if you have not watched this previous video, please go and watch, so you will get the some basic knowledge of metrics, okay. So that's why I'm trying to say, that's why I repeat so many times, okay. So that's why I'm telling you, because you know each and every class is related to everyone, okay. Every class is related to each other. Simply I want to say these things. Every class is related to every class is related to each and every concept, okay. Simply that's why I'm telling you, that's why I'm trying to say every class is related to each other. So if once you miss one classes, then you are going to get some problems by watch other classes, okay. So that's why you have to watch some in sequence, okay. You just have to see first, then after that you have to see part 2, then after part 3. In this way you are going to get clear idea about each and every things, okay. तो चलिए फिर मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ पहले, अब जस्ट यू हैव टू टोल्ड मी अबाउट द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A simply already I told you first condition, A transpose is equal to A. If this is the condition of symmetric matrix, just you have to see, just you have to check from this one. If you are getting by doing these things, then you can say this is the transpose, this is the symmetric matrix. If you are not getting this one, then you can simply say this is not a symmetric matrix, okay. तो चलिए फिर मैं चेक करता हूँ पहले, ये ऑलरेडी A दिया हुआ है। चलिए मैं इसका A ट्रांसपोज निकालता हूँ। A ट्रांसपोज निकालने के लिए मुझे चलिए सिंपली A ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या मैं बताया आप लोगों को, चलिए रो को कॉलम कर दीजिए, जस्ट यू हैव टू चेंज रो इनटू कॉलम। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, okay. This is the transpose matrix. Then after that what you have to do, if this is the same, A transpose is equal to same, then just you have to match। अगर आपको मैच करिए सबसे पहले 1 1 -1 5, अरे -1 2 1 5 1 3, अरे this is the same by doing मतलब ये क्या सेम आ रही है ना, A transpose matrix are getting are same. So what we can say, yes, this is the symmetric matrix by using this condition of symmetric matrix. This is the condition of symmetric matrix. You must have to remember this is the condition of symmetric matrix, okay. Already this is the properties of a matrix, okay. Already I told you in the beginning of classes what is the transpose, what is the symmetric, what is the skew symmetric. If you have not watched that, that's why I'm trying to force you to go and watch the previous video. So you will get the idea about each and every matrix, okay. तो ये देखिए सिंपली आगे, तो ये इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब हमको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए फिर इसका पार्ट 2 7 का पार्ट 2 जो दिया हुआ है, 7 का पार्ट 2 जो दिया हुआ है आप लोगों को 7 का जो पार्ट 2 दिया हुआ है उसको हम क्या करना है, 7 का पार्ट 2 को, 7 का पार्ट 2 जो दिया हुआ है उसको, जो 7 का पार्ट 2 है उसको क्या करना है बताओ। हमको ए दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये 3:3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है सिंपली, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करनी है, ये हमको दिया हुआ है
इसमें हमको इसमें क्या बताना है, सॉरी एक बार मुझे देख लेंगे आप, इसमें बताना है स्क्यूसेमेट्रिक मैट्रिक्स। This matrix is skew-symmetric matrix is or any other matrix. You must have to tell about this matrix. So what I told you about this matrix, what I already I had discussed about skew-symmetric matrix, symmetric matrix, but also I already have written all those conditions of skew-symmetric matrix. So what I told you about the condition of skew-symmetric matrix, just you have to remember from these classes. Okay. So first, already I told you diagonal matrix would be same, diagonal matrix would be 0, और इसका जो दूसरी कंडीशन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अगर ये आ रही है हमको तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर नहीं आ रही है तो ये हमको स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सबसे पहले हमको इसको ए ट्रांसपोज निकालना है हमको, ठीक है। सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, आँख मूंद के ए ट्रांसपोज करना है। ए ट्रांसपोज रो को कॉलम करना है, हमको रो को कॉलम करना है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ओके, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो देखो सबसे पहले आप ये देखो इसका जो डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स है वो 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, तो 0 आ रही है कि नहीं, अरे ये तो 0 आ रही है, ये भी 0 आ रही है। चलिए फिर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फिर दूसरा जो कंडीशन है उसका ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो देखो माइनस ए जो आ रही है, तो माइनस ए आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये तो चलिए फिर माइनस ए लेने के लिए हमको सबसे पहले इसमें से हमको एक में से माइनस एक कॉमन लेना है, ठीक है। तो ए में से ए में से हमको माइनस एक कॉमन लेना है। अगर माइनस इसमें से मैं कॉमन लेता हूँ, ए में से इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगी 0 0 0, ये तो सेम रहेगी, -1 1 1, ओके, -1 1 1 -1, ओके। दिस इज द ए इसमें से मैं निगेटिव ले रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों मैच कर रही है क्या, ये दोनों देखो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो 0 0 -1 1 1 0 -1 1 0, अरे ये तो मैच कर रही है। इसका मतलब क्या दिख रहा है मुझे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ये हमको क्या दिख रही है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, सिंपली दिख रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, सिंपली what we can say about this matrix, is this skew-symmetric matrix in any other matrix? No, this is the skew-symmetric matrix. Why? Well, how can you say this is a skew-symmetric matrix? Because you by solving by seeing the condition of skew-symmetric matrix, you can say this is the skew-symmetric matrix. So this is already by verifying this condition also, and also this one. So at the end we can say this is the skew-symmetric matrix. Okay, तो फिर ठीक है। फिर तो देखिए कितना सिंपल है। जस्ट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट अबाउट योर बेसिक ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नथिंग मोर देन दैट। सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि दे विल टेस्ट यू सम, बिकॉज इन द मैट्रिक्स एज वेल एज डिटरमिनेंट चैप्टर ना, you are not going to get any difficult question. Simply at the examination also you are going to get some easy question. So by applying 2 to 3 methods you are going to get real. Okay, so that's why I'm trying to tell you कि just you have to practice as much as you can, so you will get the confidence about determinant as well as matrix. So this is also scoring subject, as well as this is a scoring chapter, and also you are going to get 10 to 12 marks easily from these 2 chapters. So that's why I'm telling you just you have to focus let 50% in this chapter, so you will be getting your full marks from this determinant and matrix. ठीक है, फिर मैं इसको यहीं तक रखता हूँ आप लोगों के लिए। तो फिर मैं अगले वीडियो में मैं जो 8 से स्टार्ट करूँगा, और जो भी जितने भी क्वेश्चन बचे हो मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग बताना कैसा लग रहा है। तो दोस्तों लोग से ये भी करना आप लोग, और दोस्तों लोग बताना भी कि इस तरह की क्लासेस यहाँ पे चल रही है, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आए और मुझे भी बूस्टअप हो भी हमारे कॉन्फिडेंस में। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, फिर तब तक के लिए बाय, थैंक यू। ओके।